Okay, so we start for implement the type safety. To create a object of a generic class, you need to invoke the constructor of generic class. Okay, the first of all, to create a object of generic class, first of all you need to invoke the constructor of generic class with required type parameter. यहाँ पर ये बोल रहा है अगर आपको कोई भी जेनरिक क्लास आप बनाते हो तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जेनरिक क्लास का कंस्ट्रक्टर आपको डिफाइन करना पड़ेगा. Java provide flexibility to leave the type parameter empty as long as compiler can guess or judge the type of the argument. So compiler will judge when to add the program. So Java provide wildcard that allow you to achieve the inheritance in a type parameter. Okay, so in the inheritance in the type parameter that it will allow. Okay, so Java provide a wildcard that you will achieve the inheritance in the type parameter. To create a object of generic class, you need to invoke the constructor of generic class with required type parameter. Java provide flexibility to leave the type parameter empty. जब आप वो पैरामीटर आप डिफाइन करोगे आप इसको एम्प्टी कर दोगे. उसके बाद कंपाइलर गेस करेगा आपका रन टाइम में कौन सा वैल्यू आप पास करोगे. आप स्ट्रिंग वैल्यू पास करोगे या आप इंटीजर वैल्यू पास करोगे. कंपाइलर वहां पर जाकर जॉज करेगा. तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होता है, while using generic type you must provide the argument for every type parameter declared. जैसे कि आप जानते हैं जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के टाइम पर अगर आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर में आप पैरामीटर डिफाइन करते हो. जब आप पैरामीटर डिफाइन करते हो, पैरामीटर में आपका कुछ वैल्यू देना पड़ेगा. अगर वो इंटीजर है आपको इंटीजर वैल्यू देना पड़ेगा, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग वैल्यू देना पड़ेगा. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, at runtime we have to decide which value we have to access. So Java provide a new feature called as type inference. Java provide a new feature called as the type inference. It enable you to invoke the constructor of generic class. Generic class का constructor को call करने के लिए यहाँ पर हम use करेंगे type inference. Okay, so type inference is used to invoke the generic class. The empty set of type parameter can be used as long as compiler can infer the type argument for the context. तो कंपाइलर यहाँ पर आपका देखेगा कौन सा वैल्यू आप रन टाइम में आप इंपोर्ट करोगे. ओके, आप स्ट्रिंग वैल्यू इंपोर्ट करोगे या आप इंटीजर वैल्यू इंपोर्ट करोगे, तो यहाँ पर कंपाइलर आपका गेस करेगा. तो जावा प्रोवाइड ए न्यू फीचर कॉल एज टाइप इन्फोरेंस. ओके, तो टाइप इन्फोरेंस के मदद से हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर एम्प्टी पैरामीटर, ये पैरामीटर को हम एम्प्टी कर देंगे. तो कंपाइलर यहाँ पर गेस करेगा कौन सा वैल्यू आप रन टाइम में रिट्राइव करोगे. ओके, सो जो लास्ट 3 पॉइंट है थोड़ा लिख लीजिए.
लिख लिए तीनों? नेक्स्ट पार्ट आई विल कवर दैट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइप इन्फरेंस कैसे काम कर रहा है। पहले हम एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं पेयर। पेयर में जो वैल्यू है स्ट्रिंग और इंटीजर, ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर डाले हैं, स्ट्रिंग और इंटीजर। ऑब्जेक्ट न्यू पेयर टेस्ट एंड वन, टेस्ट फॉर स्ट्रिंग, वन फॉर इंटीजर। फिर वही क्लास है, पहला पैरामीटर हमने दे दिया इंटीजर, सेकेंड पैरामीटर हमने दे दिया वर्ड स्ट्रिंग। तो ये दोनों में क्या है ना, एक में स्ट्रिंग दे दिया और एक में इंटीजर दे दिया। न्यू पेयर टू वन डेमो। देखो सेम क्लास है, लेकिन जब हम पैरामीटर को कॉल करते हैं, एक पैरामीटर में हम स्ट्रिंग और इंटीजर पास कर रहे हैं, दूसरा पैरामीटर में हम पास कर रहे हैं इंटीजर एंड स्ट्रिंग। ये दोनों लिखिए पॉइंट। So now I show the example of type inference.
is new in the Java type inference. Okay, so working with type inference, first of all, I import the package. Okay, so some package that I have to import here, like import java dot util dot array list. array list belongs to the collection class. ये आगे just पढ़ेंगे आगे का chapter में. Then import java dot util dot start util then class type inference. Here I define a class, then public void open public static void so list already it is there. Excuse me.
Java C. Okay, so see that actually this program is saying what? It is having java.util.array यहाँ पर दो लिस्ट है, एक है array लिस्ट, एक है लिस्ट। तो दोनों लिस्ट हमने यहाँ पर अप्लाई किया। हम जानते हैं जो एलिमेंट को स्टोर करने के लिए आइदर हम वेरिएबल में स्टोर करेंगे और एल्स हम आरए में स्टोर करेंगे। वेरिएबल में क्या होता है ना, एट ए टाइम हम एक वैल्यू स्टोर करते हैं। आरए में क्या होता है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना होता है। तो अगर आप एलिमेंट को एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे तो यहाँ पर आरए लिस्ट और लिस्ट क्लास यहाँ पर यूज किया गया। तो यहाँ पर एक फंक्शन हमने डिफाइन किया शो लिस्ट, पब्लिक वॉइड शो लिस्ट। तो ये शो लिस्ट एक फंक्शन है जो क्या करेगा, जो भी एलिमेंट आप रन टाइम में पास करोगे इस ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया ना, लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ये लिस्ट क्लास है, जस्ट आगे हम पढ़ेंगे। लिस्ट क्लास जो मल्टीपल एलिमेंट को एक ऑब्जेक्ट में आपको स्टोर करता है। लिस्ट इंटीजर लिस्ट वन, न्यू अरे लिस्ट इंटीजर, लिस्ट वन डॉट ऐड करने पर आपका 11 नंबर यहाँ पर ऐड हुआ। ऐड होने के बाद फिर जब मैं शो लिस्ट करूँगा, शो लिस्ट क्या है ना, ये फंक्शन का नाम है, मतलब मैं फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के मदद से फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लिस्ट क्लास है, ये जो शो लिस्ट है ना, ये है आपका एक स्टैटिक क्लास। तो स्टैटिक क्लास को स्टैटिक मेथड में कॉल करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम शो लिस्ट कॉल करके ये लिस्ट ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर पास कर दिया, मतलब ये ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर पास कर दिया। इस ऑब्जेक्ट में कौन सा वैल्यू है ना, 11 वैल्यू है। तो 11 वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगा, यहाँ पर। तो यहाँ से आकर आपका लिस्ट ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा system.out.println। तो यहाँ पर आपका लिस्ट वैल्यू शो किया। ओके, सो दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू। फिर लिस्ट डॉट फिर से और एक ऑब्जेक्ट बनाया लिस्ट टू डॉट ऐड, फिर शो लिस्ट फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया। शो लिस्ट फंक्शन यहाँ पर कॉल किया। तो ये एक स्टैटिक फंक्शन है, तो यहाँ पर इसको कॉल करने की कोई जरूरत नहीं। तो कंपाइलर ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या करेगा, कंपाइलर इंपोर्ट द अरे लिस्ट इन जावा 8। जावा 8 में ये अरे लिस्ट को डायरेक्टली वो कॉल करता है। तो इसको बोलते हैं टाइप इन्फरेंस। ओके, मतलब आपको रन टाइम में वैल्यू चेक करके आपका वैल्यू यहाँ पर स्टोर करेगा। तो नेक्स्ट पार्ट है wild card in generic subclass. In generic, subclass cannot be passed as subtype of a superclass. ओके, जेनरिक में क्या होता है
now soft type is not passed as a super class. Means in generic, soft class cannot be passed as a subtype of super class as shown in the following code snippet. Means वाइल्ड कार्ड यहाँ पर पास किया गया एक क्लास है नंबर ऑब्जेक्ट न्यू वाइल्ड कार्ड, मतलब यहाँ पर जो रन टाइम में आप जो वैल्यू पास करोगे तो यहाँ पर नंबर नंबर हो सकता है, नंबर इंटीजर नहीं हो सकता है। अगर आपको रखना है तो इंटीजर इंटीजर कर सकते हो, नंबर नंबर नहीं कर सकता है। तो जेनरिक ओनली अलाउ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिक्लेरेशन। जेनरिक का क्या काम है? जेनरिक मतलब जनरलाइज क्लास, मतलब किसी भी टाइप का वैल्यू यहाँ पर स्टोर कर सकते हो, इट इज जनरलाइज क्लास। तो यहाँ पर क्या होगा, जनरलाइज इंटीजर ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू वाइल्ड डेमो इंटीजर, लेकिन आप नंबर इंटीजर ये वाला पास नहीं कर सकते हो। तो वाइल्ड कार्ड नंबर ऑब्जेक्ट न्यू वाइल्ड कार्ड नंबर, नंबर नंबर होगा या इंटीजर इंटीजर होगा। सम ऑफ द कॉमनली यूज वाइल्ड कार्ड आर, तो कौन सा कॉमनली वाइल्ड कार्ड हम यूज करते हैं? एक है एक्सटेंस, एक है सुपर, एक है क्वेश्चन मार्क। एक्सटेंस का मतलब है आपको इनहेरिटेंस पास करना है, सुपर का मतलब है पेरेंट क्लास को एक्सेस करना है। अगर क्वेश्चन मार्क आप यूज करते हो तो पेरेंट क्लास का सारा फंक्शनैलिटी कॉल कर सकता है। एक्सटेंड मतलब स्पेसिफिक, मतलब जो सॉफ्ट क्लास को जो एलिमेंट है वो रिट्राइव करेगा। सुपर का मतलब है अगर कोई भी वेरिएबल होता है, कोई भी फंक्शन होता है, तो पर्टिकुलर वेरिएबल और फंक्शन को कॉल करने के लिए सुपर यूज किया गया। अगर आप क्वेश्चन मार्क डिफाइन करते हो दैट मीन्स दिस जेनरिक अलाउ यू टू रिट्राइव ऑल द फंक्शनैलिटी फ्रॉम द जेनरिक क्लास। जेनरिक क्लास का सारा फंक्शनैलिटी यहाँ पर कॉल कर सकता है। ओके, तो इट इज द यूज ऑफ वाइल्ड कार्ड। ओके, सो A1 2 ये दोनों पॉइंट, ये तीनों लिखो। लिख लो आदित्य, वॉइस लिख लो। वसीम, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. okay, so this example again I will explain you. Okay, so after the collection class is over, then I will explain you again. Okay, এটা কইবি। So first now comes to the collection classes.
Then comes to the collection class. The collection class is what? It is a single object designed to store the group of object. It doesn't hold the primitive type. मतलब हम जो वैल्यू है वो वेरिएबल में स्टोर करते थे, हम हमारा जो वैल्यू है वो आरए में स्टोर करते थे, अभी हमारा जो वैल्यू है हम एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे. तो जावा real Java programming, if you say, the real Java programming is implemented in the Java collection classes. The single object designed to store the group of objects, it doesn't hold the primitive type. It implements dynamic structure, including stack, queue, dynamic array and hash. तो यहाँ पर stack यूज हो सकता है, queue यूज हो सकता है, dynamic array यूज हो सकता है और hash यूज हो सकता है. Collection class, it rely on the generic implementation behavior. The class store in the java.util package, ये util package के अंदर स्टोर होगा. कलेक्शन क्लासेस में स्पेशलिटी क्या है ना, एक सिंगल ऑब्जेक्ट में आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो. इट जस्ट एक्टिंग एज अरे. अरे इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट वेयर यू कैन स्टोर मोर देन वन वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल. तो कलेक्शन क्लासेस में भी ऐसा होता है. इट इम्प्लीमेंट many data structure including stack, queue, dynamic array and hash. Collection API, it rely on the generic behavior for implementation. For implementing the collection classes, we're using java.util package. तो util package को use करके हम collection classes implement कर सकते हैं. इसमें क्या होता है ना, यहाँ पर different data structure रहता है, उस data structure के मदद से हम variety of value यहाँ पर store कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर देखिए एक है कलेक्शन क्लास इंटरफेस. ये कलेक्शन क्लास है, एक इंटरफेस है, इसके अंदर एक है सेट और लिस्ट इंटरफेस. एक होता है सेट और लिस्ट. जो स्ट्रेट लाइन होता है वो इंटरफेस होता है, जो डॉटेड लाइन है वो क्लास होता है. तो यहाँ पर कलेक्शन में यहाँ पर पास हुआ सेट एंड लिस्ट इज ए इंटरफेस. ये जो सेट इंटरफेस कहाँ पर यूज होगा ना, हाश सेट क्लास में यूज होगा. तो यहाँ पर जो कलेक्शन क्लास जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर क्या क्या रहेगा ना, आरए लिस्ट और लिंक लिस्ट. आरए लिस्ट और लिंक लिस्ट क्या है ना, ये दोनों क्लास है. तो लिस्ट इंटरफेस को आरए लिस्ट और लिंक लिस्ट यूज करेगा. और कलेक्शन में जो सेट इंटरफेस है, सेट इंटरफेस को कौन यूज करेगा ना, हाश सेट यूज करेगा. और सेट में क्या होता है ना, वैल्यू सॉर्टिंग नहीं होता है. तो सॉर्टिंग इम्प्लीमेंटेशन, वैल्यू को सॉर्टेड करने के लिए यहाँ पर हम ट्री सेट यूज करेंगे. सो बाय यूजिंग ऑफ ट्री सेट वी स्टोर द वैल्यू in a particular in a sort method. We convert the value in a sorting wise. The collection, set, list, hash set, sorted set, tree set, array list and linked list. तो ये सब collection class के अंदर रहता है. Okay, so where you can implement the functionality, you can implement more functionality, or you have the more functionality here. Collection, set, list, hash set, sorted set, tree set, array list, linked list. तो ये कैसे यूज होता है, इसका क्या क्या फंक्शनलिटी है, कैसे आप एलिमेंट ऐड करोगे एक ऑब्जेक्ट के अंदर, और एक ऑब्जेक्ट से कैसे वैल्यू हम रिट्राइव करेंगे, तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इट इज इन योर डेवलपिंग पार्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग पार्ट में कलेक्शन क्लासेस बहुत सारे यूज होता है. ओके, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो नेक्स्ट क्लास में हम दिखाएंगे. ओके, चलो.